You talk about Sardar Patel ji, but you destroy Sardar Patel ji's values every day. You talk about Ambedkar ji, you destroy his values every day. You talk about Nehru ji, no, you don't talk about Nehru ji. You bow in front of Buddha, you destroy what he says. So the point is, you have to be truthful to what you are. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking. नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। भरी संसद में राहुल गांधी ने एक तरफ तो मोदी की तारीफ की है और वहीं दूसरी तरफ खिंचाई भी की है। किन तथ्यों को लेकर या किन बातों को लेकर मोदी की तारीफ की गई और किन चीज़ों को लेकर मोदी की खिंचाई की गई है। साथ साथ इसके बाद चर्चा इस पर भी करेंगे कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, क्या होंगे समीकरण, कौन मारेगा दिल्ली का रण या कौन दिल्ली की रण की बाजी मार रहा है। आइए पहले बात हम करते हैं किस चीज़ को लेकर राहुल गांधी ने मोदी की तारीफ़ की है। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को लेकर मोदी की तारीफ़ की है और साथ के साथ कहा भी है कि जब मेक इन इंडिया एक अच्छा भारत में उत्पादन के लिए एक अच्छी सोच है मेक इन इंडिया, मगर मेक इन इंडिया का क्या रिजल्ट रहा, कहाँ है मेक इन इंडिया। सोच अच्छी है मगर काम क्यों नहीं हुआ है। आज के समय में भारत में एक उत्पादन नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे कि उन्होंने फ़ोन की जो बात है, फ़ोन के उदाहरण से जो बात कही, जो ये फ़ोन है इसको सिर्फ भारत में तैयार किया जा रहा है मगर हर पार्ट ये चाइना से आ रहा है। तो भारत में ही क्यों ना इसका उत्पादन किया जाए। Think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production. वहीं राहुल गांधी ने एआई की भी बात की है और कहा है कि जब हमारा डेटा फेसबुक, इंस्टा और एक्स के पास में है। We have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own
is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. महाराष्ट्र में एक गांव है मार्कवाड़ी। मार्कवाड़ी गांव के लोगों ने हुए विधानसभा चुनाव में धांधली को लेकर चुनाव आयोग से पुनः चुनाव की मांग की, मगर चुनाव आयोग ने मांग ठुकरा दी। तो वहां के लोगों ने स्वयं चुनाव करने का प्रस्ताव रखा, मगर सरकार ने या चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव नहीं करने दिया। राहुल गांधी ने मोदी के सामने खुलासा किया है और कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव या हरियाणा का चुनाव किस तरह से जीता गया या किस तर्ज पर ये चुनाव जीते गए हैं। राहुल गांधी ने ये भी खुलासा किया है कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी की सरकार किस तरीके से जीतने में कामयाब हो पाई या किस तरीके से वो चुनाव को जीत पाई। राहुल गांधी ने कहा कि जो पिछले 5 साल में जो महाराष्ट्र में जो वोटों की संख्या जो बढ़ी थी या जो वोटों में बढ़ोतरी हुई थी वो मात्र लगभग 50 लाख के आसपास थी। ये जो आंकड़ा था 50 लाख का बताया जा रहा है, मगर लोकसभा और विधानसभा के बीच का जो समय था उस समय में जो कि लगभग 6 महीने का जो समय था, उस 6 महीने के समय में जो कि 74 से 75 लाख जो वोटें जो बढ़ाई गई थी, मगर राहुल गांधी ने जो भरी संसद में जो आंकड़ा जो पेश किया है वो 70 लाख का पेश किया है, मगर 74 से 75 लाख जो वोटें लास्ट के 6 महीने में जो बढ़ाई गई, जो कि 5 साल में 50 लाख जो वोटें बढ़ी थी, जो खेला किया गया बीजेपी की तरफ से, जो कि विपक्ष के जो वोटें काटे गए थे, उस पर भी राहुल गांधी ने चर्चा की किस तरीके से वोटर लिस्ट से विपक्ष के वोटरों के नाम गायब थे। और राहुल गांधी ने ये भी जिक्र किया गया कि महाराष्ट्र की एक विधानसभा है शिरनी। शिरनी के अंदर, ये शिरनी जो विधानसभा एक छोटी सी विधानसभा है, उस शिरनी विधानसभा में मेडिकल एक कॉलेज एक इमारत है, जिस इमारत के भीतर जो मेडिकल कॉलेज है, जिस इमारत के भीतर 7000 वोटें बढ़ाई गई। एक इमारत के भीतर एक ही इमारत के नाम पर 7000 वोटें बढ़ाई गई। वो वोटें किसकी थी? वो वोटें छात्रों की वोटें थीं, जो छात्र एमपी या बिहार या झारखंड या कहीं की भारत के अदर राज्यों से जाकर जो वहाँ पढ़ रहे थे या जो वहाँ रह रहे थे या जो वहाँ कर्मचारी थे, उनकी वोटें बढ़ाई गई। The most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. देख नहीं रहे मुझे। पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. Sir, महाराष्ट्र में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। बिल्डिंग है सर शिरडी में, 7000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7000 नए वोटर ऐड हुए सर। Asking this question, we are asking this, Speaker sir, population of Himachal Pradesh. आपने बीजेपी को गाड़ी दे दी। Please.
population of Himachal Pradesh has voted, extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not an irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. उनकी वोटें बढ़ाई गई। वहाँ की जो लोकल की जो प्रत्याशी थी, जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी, उन्होंने उनको पहचाना और उनको नोटिस किया, उनसे बातें की और उनसे पूछा कि आप कहाँ के हैं। किसी ने किसी मंदिर का नाम बताया, किसी ने कहीं का परिचय दिया, या किसी ने कोई अपना एड्रेस दे रहे थे। मगर जब कांग्रेस की प्रत्याशी के द्वारा जब पूछा गया कि उस जगह के बारे में डीपली जानकारी पूछी गई, तो छात्र बताने की बजाय भागने लगे और वहाँ से भाग खड़े हुए। किस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर पैसे से लेकर और प्रशासन तक और वोट बढ़ाने तक किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट किया गया, किस तरीके से चुनाव को जीता गया। हाँ, जिस दिन हमें पहले ही मालूम पड़ गया था कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट वोट करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वोटिंग करने वाले हैं। मैं जब वहां 7 बजे गई तो उस कैंपस में सब स्टूडेंट लड़के और लड़कियां थी और मैंने उनको रोका, अरे भाई आप कैसे वोट कर रहे हो? वो बोले नहीं, हमारा वोटिंग कार्ड बनवाया गया है। मैंने उस लड़कियों को पूछा आप कहाँ से आए? वो बोले हम पीएमटी के स्टूडेंट है, प्रोग्राम मेडिकल ट्रस्ट, और हमको वोटिंग के लिए लाया गया है। तो बहुत सारे वहाँ लड़के लड़कियां वोटर्स थी। मैंने उनका वीडियो भी निकाला, उनसे बातचीत भी की। मैंने कहा आप लोग तो यहाँ के नहीं है, प्रॉपर रहवासी नहीं है, आप लोग तो स्टूडेंट है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, फिर आप कैसे वोट कर रहे हैं? तो मेरे से भागने लगी और उनको बताया गया था, किसी ने आपसे पूछा कि आप कहाँ के, तो आप लोगों ने कहने का हम पीएमटी और बिरोबा मंदिर, ऐसे वो कहती थी। 1-2 लड़कियों ने कहा हम बिरोबा मंदिर से आए। मैंने पूछा आपको मालूम है क्या बिरोबा मंदिर भगवान कौन से, कहाँ है उनका मंदिर?
तो वो भागने लगी, वो लड़के और लड़कियां भागती थी मेरे से दूर। और सुबह सुबह 7 या 10 जी। बजे तक उनका सब वोट किया गया, उनको लाया। मगर वहीं अब जब बात दिल्ली की होती है, जो कि दिल्ली में सभी का जो कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, या जिस तरीके से लोकसभा का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और विधानसभा आम आदमी पार्टी के, या ये कहें कि केजरीवाल के पक्ष में जा रही है, जो कि जो पिछले आंकड़े भी बताते हैं कि विधानसभा में केजरीवाल 54% पर पहुंच जाते हैं, या ये कहें 50+ हो जाते हैं विधानसभा के भीतर, और जब बात आती है लोकसभा की तो 50 के नीचे चले जाते हैं। मगर अब के जो आंकड़े जो आगे सामने आ रहे हैं, जो एक नज़ारा जो दिल्ली का देखने में लग रहा है, शायद वो अब है नहीं। वो क्यों नहीं है या कैसे नहीं है, इस पर भी आइए एक नज़र डालते हैं। पहले तो आंकड़ों पर नज़र डालते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के भीतर बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री, लास्ट जो मुख्यमंत्री रही थी वो भी महिला रही थी, या कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री रहीं, या ये कहें कि जो 3 बार का जो आंकड़ा है, जो कि तीसरी जो बार जो मुख्यमंत्री रही वो महिला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की रही, और शायद वही आंकड़े अब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से तीसरी बार का जो कार्यकाल माने, या फिर महिला मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो, वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से तीसरी या जो महिला मुख्यमंत्री ही लास्ट मुख्यमंत्री हो सकती हैं। ये तो सिर्फ आंकड़े रहे, या आंकड़े डराते भी हैं, क्योंकि अब से पहले कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आया है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, मगर योगी आदित्यनाथ ने उसको तोड़ा है। वो नोएडा भी आए और मुख्यमंत्री भी बने, और वर्तमान में है भी मुख्यमंत्री। मगर दिल्ली के और भी आंकड़े डरा रहे हैं, या ये कहें कि केजरीवाल की सरकार जा रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जा रहे हैं और बीजेपी आ रही है। कि जिस तरीके से विपक्ष ने या केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि 7.5 लाख वोट दिल्ली में काटे गए हैं और दिल्ली में वोट बढ़ाए गए हैं। अगर दिल्ली में 7.5 लाख वोट काटे गए हैं तो लगभग 17 सीटें ऐसी हैं, दिल्ली के अंदर 17 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पर पिछले चुनाव में 10,000 से कम का मार्जिन था, या 10,000 से कम का जो अंतर था, जो कि 10,000 के कम के मार्जिन से आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी। अगर 7.5 लाख वोट अगर काटे गए हैं केजरीवाल की तरफ से, या फिर ये कहें कि 7.5 लाख वोट बीजेपी ने अपने बढ़ाए हैं, अगर बीजेपी ने 7.5 लाख वोट अपने बढ़ाए हैं तो फिर तो खेला हो गया। तो 14-15 लाख वोट का अंतर, जो कि 17 सीटों की जो बातें हैं, जो 10,000 से कम के मार्जिन की जो बातें हैं, वो तो सूदी सूदी फिर तो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर इस हिसाब से होता है तो 17 सीटें तो बीजेपी के खाते में जा ही चुकी हैं। मगर फिलहाल जो कशमकश जो बनी हुई है, जो फाइट इस समय बीजेपी या केजरीवाल के बीच हो रही है, वो फाइट ये है कि लगभग 12 से 13 सीटें, या ये कहें कि 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 22 से 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये कहें कि केजरीवाल आगे चल रहे हैं, मगर जादुई आंकड़ा 36 का है, बहुमत का आंकड़ा 36 का है, तो वही केजरीवाल को 13 से 14 सीटों की ज़रूरत है,
या ये कहें कि सूदा कि 13 सीटों की ज़रूरत है, वहीं बीजेपी को 23 सीटों की ज़रूरत है। मगर जो 17 सीटों का आंकड़ा है, या ये कहें कि 33 या जो 34 सीटें जो हैं जिस पर फाइट होनी बाकी है, जिन सीटों पर 33 से 34 सीटों पर वहाँ कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है। उन्हीं 33 सीटों में से या 34 सीटों में से अगर उन सीटों में से 23 सीटें तो लगभग बीजेपी को ज़रूरत है, वही 13 सीटों की ज़रूरत केजरीवाल को है। मगर उन 33 से 34 सीटों को कौन जीतने में कामयाब होगा, जिन पर पेच फंसा हुआ है, या जिस तरीके से केजरीवाल का जो आरोप है कि उनके वोट काटे गए हैं, अपने वोट बढ़ाए गए हैं, या ये कहें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के सिवनी में जो खेला हुआ, एक बिल्डिंग में ही 7-7 हज़ार वोट बढ़ाए गए हैं, तो क्या अगर दिल्ली में इस तरीके से वोट बढ़ाए गए तो यहाँ तो कोई पहचान करने वाला भी नहीं है। कौन दिल्ली का है, कौन यूपी का है, या हरियाणा का, या राजस्थान का, या महाराष्ट्र का है, तो यहाँ तो पहचान पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ तो पड़ोसी से पड़ोस को कोई नहीं जान पाता या पहचान पाता है। तो यहाँ खेला करने में बीजेपी को आसानी भी होगी, प्लस बीजेपी की राह आसान और भी होते हुए नज़र आ रही हैं, जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 4.5% जो वोट प्राप्त हुआ था। इस समय बीजेपी के लिए खुशी की खबर ये है, यह लहर ये है कि कांग्रेस इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस अपने पिछले जो परसेंटेज का आंकड़ा है 4.5 का, उसको बढ़ाते हुए दिख रही है, उसको लगभग दोगुना करते हुए दिख रही है, लगभग 8% के आसपास जाती हुई दिख रही है। जिस तरीके से कांग्रेस 8% पर पहुंच रही है, क्या उसका नुकसान केजरीवाल को हो रहा है या फिर ये कहें कि बीजेपी को हो रहा है? अगर जिस तरीके से मुसलमानों के युवाओं में, मुस्लिम युवाओं में या दलितों में, जिस तरीके से मुस्लिम युवाओं में कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ रहा है, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से मुसलमान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, उससे केजरीवाल की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। साथ के साथ केजरीवाल के साथ साथ यूपी में अखिलेश यादव हों, या बिहार में लालू यादव हों, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हों, इनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति संविधान के नाम पर दलित का झुकाव हो रहा हो या बीसी का झुकाव हो रहा हो, जिस तरीके से दलित, बीसी या मुसलमान संविधान के नाम पर या राहुल गांधी की घर घर जाना या मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचना या अचानक मंडी या यमुना पर पहुंचना, इससे बढ़ती लोकप्रियता केजरीवाल को नुकसान दे रही है। अगर जिस तरीके से 3 से 4% वोट और केजरीवाल का घट रहा है, ये कहें सूदा कि केजरीवाल 50% के आसपास नज़र आ रहे हैं या 50% से कम में जा रहे हैं, जो कि वर्तमान जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि 48 से 49% वोट केजरीवाल को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं 43 से उठकर 43-44% पर बीजेपी भी पहुंच रही है। या जिस तरीके से केजरीवाल से नाखुश वोटर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्या ये राह केजरीवाल के लिए आसान होने वाली है, या फिर ये कहें कि इन सब को अगर एक नज़र से देखें, या जिस तरीके से बीजेपी खेला करने में माहिर है, या जिस तरीके से राहुल गांधी यमुना के जल की बातें कर रहे हैं, दिल्ली के गड्ढों की बातें कर रहे हैं, गरीब दलित की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल
आए तो थे बैगनार से, आए बात तो करते थे झोंपड़ियों की, रह रहे शीश महल में हैं। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है, क्या इस तरीके से लग रहा है कि केजरीवाल वापस आ रहे हैं? लग तो यही रहा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना रही है, क्योंकि बीजेपी पर लगभग 13 सीटें वो जीत रही है, जो कि श्योर क्लियर दिखाई दे रही हैं, मगर 17 सीटें वो उनको भी जीत रही है जिन सीटों पर वो पिछले चुनाव में 10,000 के कम के मार्जिन से वो हारी थी। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 30 सीटों पर तो यही पहुंच रहे हैं। ज़रूरत 6 सीटों की और है। तो 6 सीटें कौन कौन सी होंगी, या उन सीटों पर भी खेला होगा, या फिर ये कहें कि जो वोटें बढ़ाई गई हैं या काटी गई हैं, या फिर कांग्रेस अच्छा कर रही है। 15 से 18 सीटें ऐसी हैं कि जिन पर कांग्रेस अच्छा लड़ रही है, या ये कहें कि अच्छा ही चुनाव लड़ रही है, जिन पर कांग्रेस पिछले बार से बहुत अच्छा कर रही है। क्या वो सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? क्या ये इन सब का खामियाजाना केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा? सब आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए, यह हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार बनाने में अब तक कामयाब रही है या उलटफेर करने में कामयाब रही है, तो दिल्ली में भी उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए वोट परसेंटेज की, लास्ट समय तक भी वोट परसेंटेज के मामले में लगभग 4 से 5%, लगभग 4% वोट केजरीवाल को ही फालतू मिल रहे हैं। वोट परसेंटेज में तो केजरीवाल ही आगे हैं, या ये कहें कि आम आदमी पार्टी ही आगे है। पर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी आम आदमी पार्टी से या केजरीवाल से पीछे नज़र नहीं आ रही है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।